بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ وہ اس وقت 13 سال کی تھی جب اسے مجھ سے محبت ہوئی، پہلی نظر کی آخری محبت۔ آخری اس لیے کہ پھر اس نے کسی اور سے محبت نہیں کی تھی، مگر اس نے اظہار 3 سال بعد کیا تھا۔ اس کی اور میری عمر میں 9 سال کا فرق تھا۔ فرق ہماری صورت اور تعلیم میں بھی تھا۔ وہ مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ پتہ نہیں اس نے مجھ میں ایسا کیا دیکھا کہ اسے مجھ سے محبت ہو گئی۔ میں نے یہ سوال اس سے بھی کیا تھا اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ ہی کے منہ سے آپ کی تعریف سن سن کر مجھے آپ سے محبت ہو گئی۔ بات تو عجیب تھی، کسی کی تعریف سن کر اس سے بے تحاشا محبت ہو جانا، مگر یہی ہوا تھا۔ وہ میری بڑی بھابھی کی سب سے چھوٹی بہن تھی۔ بھابھی ایک نہایت اچھی اور کم گو عورت تھی۔ جب سے بیاہ کر ہمارے گھر آئی تھی، تب سے لے کر آج تک ان کی کسی سے تلخ کلامی نہیں ہوئی تھی۔ ماں کی طرح ہم سب بہن بھائیوں کا خیال رکھتی اور ان کی اچھی عادتوں کی وجہ سے ہمارے دل میں ان کے لیے عقیدت کی حد تک عزت اور احترام تھا۔ جہاں تک ممکن ہوتا میں بھی ایک بیٹے کی طرح ان کا خیال رکھتا تھا۔ میں ان کے اور ان کے بچوں کے لیے اکثر اوقات کوئی نہ کوئی چیز لے آتا تھا، جس سے وہ بہت خوش ہوتی۔ میرے گھر والے اگر کبھی کبھار ان کو کسی بات پر کچھ برا بھلا کہتے تو بھابھی کی بجائے میں انہیں جواب دیتا۔ بہو جتنی بھی اچھی ہو، مگر ہمارے معاشرے میں ساس اور ساس جتنی بھی اچھی ہو، بہو کو ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ گلہ رہتا ہی ہے۔ یہی حال ہمارے گھر والوں کا تھا۔ وہ اگرچہ بھابھی سے خوش تھے، مگر کبھی کبھار ذرا سی غلطی پر ان کو کھری کھری سنا دیتے۔ بھابھی کو اگرچہ برا لگتا ہوگا، مگر انہوں نے کبھی ساس بہو یا نندوں سے روایتی جنگ نہیں لڑی۔ وہ بس اپنے کمرے میں چلی جاتی اور تب تک نہیں نکلتی تھی جب تک ان کو یقین نہ ہو جاتا کہ دوسری طرف سے مکمل جنگ بندی ہو چکی ہوگی۔ مجھے اتنا پتا ہے کہ پہلے دن سے لے کر آج تک میں نے کبھی بھابھی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے گھر میں بھی میری تعریف کرتی تھی، اور یہی تعریف ان کی بہن کے دل میں میرے لیے محبت جگانے کا سبب بن گئی۔ وہ سردیوں کی ایک رات تھی جب میرے موبائل پہ ایک میسیج آیا۔ نمبر میرے لیے قطعی انجان نہیں تھا، بھابھی کے میکے کا نمبر تھا جو میرے موبائل میں ان کے بھائی کے نام سے سیو تھا۔ نمبر سے پہلے بھی اکثر بیشتر شعر کی صورت میں کوئی میسیج آ جاتا تھا، مگر میں نے کبھی دھیان نہیں دیا۔ مجھے لگتا تھا کہ بچوں سے سینڈ ہو گیا ہوگا یا پھر بھابھی کی چھوٹی بہن نے سینڈ کر دیا ہوگا۔ میرے دل میں ان کی بہن کے لیے ایسا کوئی جذبہ ہی نہیں تھا کہ میں میسیجز پہ دھیان دیتا یا سوچتا کہ مجھے کیوں کیے گئے، کیونکہ میں ان کی بہن کو بہت چھوٹی سمجھتا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی کچی عمر میں کوئی اتنی پکی محبت کر سکتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں کوئی محبت بھی کر سکتا ہے۔ مگر اس نے کر لی تھی، اور 3 سال پہلے کر لی تھی، مگر مجھے اس بات کی خبر بھی نہیں ہونے دی۔ اسے خبر ہی نہیں کہ وہ بے خبر آتا ہے خیالوں میں راتوں کو وہ اکثر۔ شعر پڑھ کر میں سوچ میں پڑ گیا تھا۔ پہلے بھی اکثر ڈھکے چھپے الفاظ کے ایسے شعر آتے رہتے تھے، مگر میں اگنور کر دیتا تھا۔ مگر اس وقت میں نے یوں ہی دل لگی کے لیے لکھ کر سینڈ کر دیا کہ کون ہو؟ نتاشا۔ جواب میری توقع سے جلدی مگر عین توقع کے مطابق آیا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ بھابھی کی چھوٹی بہن نتاشا نے ہی میسج کیا ہوگا۔ کیسی ہو؟ میں نے یوں ہی پوچھ لیا۔ آئی ایم فائن، آپ کیسے ہیں؟ آدھی انگلش آدھی اردو میں جواب اور سوال ایک ساتھ لکھا گیا تھا۔ میں بھی ٹھیک، میں نے مختصر لکھا۔ آپ بھی کیسی ہیں؟ شاید وہ بات بڑھانا چاہتی تھی، اس لیے بھابھی کا پوچھ لیا۔ وہ بھی ٹھیک ہیں اور باقی سب بھی، میں نے جواب دیا۔ آپ لوگ جاگ رہے ہیں ابھی تک؟ نتاشا کا میسج آیا۔ نہیں، صرف میں ہی جاگ رہا ہوں، باقی سب گھر والے تو کب سے کھوڑے بیچ کر سو گئے تھے۔ ہا 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 ہا، سیم۔ میرے جواب پر شاید اسے ہنسی آئی تھی، اس لیے اس نے ہاں ہاں لکھا، ساتھ ہی اس نے سیم بھی لکھا تھا، یعنی اس کی طرف بھی یہی حال ہے، صرف وہی جاگ رہی ہے۔ آپ کیوں جاگ رہی ہو ابھی تک؟ میں نے فوراً سوال کیا۔ بس ویسے ہی، نیند نہیں آ رہی تھی۔ جواب کچھ پل بعد آیا، شاید سوچ کر لکھا گیا تھا۔ نیند کیوں نہیں آ رہی؟ کہیں محبت تو نہیں ہو گئی کسی سے؟ میں نے یوں ہی لکھ کر بھیج دیا۔
ہاں شاید ایسا ہی ہے، اس نے فوراً جواب دیا اور جواب پڑھ کر میں تجسس میں پڑ گیا۔ او اچھا، کون ہے وہ خوش نصیب جس سے آپ کو محبت ہوئی؟ مجھے 100% یقین تھا کہ وہ اپنے کسی کزن کا نام لے گی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ قرعہ محبت کس کزن کے نام نکلا ہے، کیونکہ جہاں تک میرے علم میں تھا نتاشا کے کئی کزن اپنا دل اس کے قدموں میں نچھاور کرنے کو تیار تھے۔ بس ہے کوئی، نتاشا نے بات ٹالنا چاہی۔ مجھے بے فکر ہو کر بتا سکتی ہو، میں بات کو راز میں رکھنا جانتا ہوں۔ میں نے یقین دلایا کہ وہ مجھ پہ بھروسہ کر سکتی ہے۔ میں تجسس سے مجبور ابھی کے ابھی اس کے محبوب کا نام جاننا چاہتا تھا۔ کل بتاؤں گی، اس کے جواب سے مجھے مایوسی سی ہوئی۔ اچھا چلو کل بتا دینا، میں نے لکھ کر سینڈ کر دیا۔ میں نے سوچا ضد مناسب نہیں، وہ سوچے گی عجیب انسان ہے، ایک بات کے پیچھے ہی پڑ گیا ہے۔ تھینکس، نتاشا نے لکھا تھا۔ میں نے پوچھا کس بات کا تھینکس، تو کہنے لگی کہ آپ نے ضد نہیں کی نام پوچھنے کی۔ چلو سو جاؤ، اب کافی رات ہو گئی ہے، صبح کالج بھی تو جانا ہے آپ نے۔ میں نے اسے لکھ کر سینڈ کر دیا۔ اس نے فوراً اوکے کا رپلائی دیا اور ساتھ گڈ نائٹ ٹیک کیئر بھی لکھ دیا۔ اگلی رات ٹھیک 10 بجے اس کا میسج آ گیا۔ وہ عکس بن کر میری چشمے در میں رہتا ہے، عجیب شخص ہے، پانی کے گھر میں رہتا ہے۔ حسب سابق نتاشا نے شعر سینڈ کیا تھا۔ حال احوال پوچھنے کے بعد میں نے فوراً وہی سوال کر دیا۔ بتاؤ کون ہے وہ جو پانی کے گھر میں رہتا ہے؟ میں نے لکھا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، آپ کیا کرو گے پوچھ کر؟ اس کے رپلائی سے میں جھنجھلا گیا۔ چلو رہنے دو، نہ بتاؤ، ویسے بھی میں نے پوچھ کر کرنا بھی کیا؟ میں نے جواب میں لکھا۔ ارے آپ تو ناراض ہو گئے؟ فوراً رپلائی آیا تھا۔ نہیں، اس میں ناراض ہونے والی کوئی بات نہیں، آپ کی زندگی ہے، جو مرضی کرو۔ میں نے جواب میں لکھ بھیجا، زندگی تو میری ہے مگر مرضی دل کی چلتی ہے۔ نتاشا نے عجیب فلسفیانہ سا جواب دیا تھا۔ ہو سکے تو دماغ سے بھی کام لے لینا چاہیے، میں نے طنز کیا۔ دل و دماغ دونوں میرے بس میں نہیں ہیں، صرف اسی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ نتاشا کا جواب پڑھ کر مجھے تھوڑا سا غصہ آیا۔ بڑی بڑی باتیں کرنے لگی ہو، میں نے کہا۔ محبت بہت کچھ سکھا دیتی ہے، نتاشا نے جواب میں لکھا۔ اچھا جی، میں نے پوچھا۔ جی، جواب مختصر آیا تھا۔ میں نے رپلائی ہی نہیں دیا۔ کیا ہوا؟ کچھ توقف کے بعد اس کا میسج آیا۔ کچھ نہیں، میں نے جان چھڑانا چاہی۔ پتہ ہے مجھے اس سے محبت ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں۔ نتاشا کا میسج پڑھ کر مجھے حیرانگی ہوئی۔ او اچھا، میں نے مختصر لکھا۔ جی، ایک بار پھر اس نے مختصر سا جواب دیا۔ اظہار آپ نے کیا تھا یا اس نے؟ میں نے یوں ہی تجسس کی خاطر پوچھ لیا، مگر اس کا جواب پڑھ کر مجھے حیرانگی کے ساتھ غصہ بھی آیا۔ کسی نے بھی نہیں، نتاشا کا جواب تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ جس سے محبت کرتی ہے اس سے اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ 3 سال سے یہ پاگل لڑکی یک طرفہ محبت کیے جا رہی ہے، تو اسے بتایا کیوں نہیں آپ نے ابھی تک؟ میں نے پوچھا۔ مجھے اس دیوانی کی پریم کہانی میں دلچسپی سی ہونے لگی تھی۔ مجھے ڈر لگتا ہے اس سے۔ نتاشا کے جواب پر بے ساختہ مجھے ہنسی آ گئی تھی۔ کیوں، وہ کیا اتنا خوفناک ہے؟ میں نے مذاق میں کہا۔ نہیں نہیں، ایسا نہ کہیں پلیز، وہ بہت پیارے ہیں۔ نتاشا کے الفاظ نہ جانے کیوں مجھے اچھے نہیں لگے تھے، مگر میں نے اس کا اظہار اس سے نہیں کیا۔ تو پھر بتا دو اسے کہ آپ اس سے محبت کرتی ہو، یہ نہ ہو وہ کسی اور کو پسند کر لے یا کوئی اور اسے پسند کر لے، پھر دیکھتی رہنا آپ۔ میں نے اسے مفت مشورے سے نوازا۔ اللہ نہ کرے، ایسا تو نہ کہیں آپ، دل دہل گیا ہے میرا۔ نتاشا کے الفاظ اس کی محبت کی گہرائی کا ثبوت تھے۔ کچی عمر میں پکی محبت کر بیٹھی ہو، میں نے اسے کہا تو اس نے ہاں 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 کا رپلائی بھیج دیا۔ ہو سکے تو کل، ورنہ جتنی جلدی ہو سکے اظہار کر دینا اس سے، دیر مناسب نہیں ہوتی۔ میں نے اسے ایک بار پھر مشورہ دیا اور ساتھ ہی گڈ نائٹ کا میسج کر دیا۔ اس نے بھی حسب عادت گڈ نائٹ اور ٹیک کیئر کا میسج کیا۔ کوشش کروں گی کل اسے بتا دوں، نتاشا نے میسج کیا۔ صحیح ہے، میں نے مختصر لکھ دیا۔ میں نے سوچا دوبارہ اگر اس نے رابطہ کیا تو اس لڑکے کا نام جاننے کی کوشش کروں گا، بتا دیا تو ٹھیک، ورنہ نہ صحیح۔ 3 دن بعد ایک رات اس کا میسج آیا۔ حسب معمول اس نے سب سے پہلے شعر ہی سینڈ کیا تھا۔ سلام دعا کے بعد میں نے 2 دن غیر حاضری کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ 2 دن سے میں سوچ اور ڈر میں ہوں۔ سوچ اور ڈر، اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے پوچھا تو بتانے لگی
बल्कि मैं इस डर से इजहार नहीं कर सकी क्योंकि मैं सोच रही हूँ अगर उससे मोहब्बत ना हुई तो क्या होगा। आप जैसी लड़की को कौन ठुकराएगा भला, मैंने दिल में सोचा, मगर उससे नहीं कहा। अगर उसने कबूल ना की तो आप भी दफ़ा कर देना उसे, मैंने सख्त सा मशवरा दिया। ये इतना आसान नहीं है। नताशा का जवाब मेरी तवक्को के मुताबिक था। आपने कभी मोहब्बत की है? नताशा ने मुझसे सवाल किया। नहीं, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। अच्छा, मैं समझ नहीं सका इसके अच्छा में हैरत थी या अफसोस। अगर आपके घर वालों को पता चल गया कि आप किसी लड़के में इंटरेस्टेड हो तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने नताशा को डराना चाहा, मगर उसका जवाब मुझे हैरत में मुब्तला कर गया। उसने कहा था कि घर में सिर्फ आप ही को पता है कि मैं किसी को पसंद करती हूँ और आप ही को इस पर कोई एतराज़ नहीं है। आप ही से उसकी मुराद मेरी भाभी थी। इस बात का एक ही मतलब था कि भाभी की नज़र में भी वो लड़का और उसके घर वाले अच्छे थे। अगर ऐसी बात है तो भाभी को कहना था कि वो लड़के और उसके घर वालों को मंगनी पे राज़ी कर लें। आपके सारे डर ही ख़त्म हो जाएंगे। मैंने लिखकर सेंड किया। काश ऐसा हो जाता, मगर आप ही कहती हैं कि अभी हालात ऐसे नहीं हैं। नताशा के अल्फाज से हसरत टपक रही थी। अच्छा, मेरे अच्छा पर उसने जी का जवाब दिया। बात सुने, नताशा ने मैसेज किया। मेरे जी कहने पर बोली, आपने आज उसका नाम नहीं पूछा। हालांकि मैंने सोच लिया था कि आज आपको नाम बता ही दूंगी। चलो बता दो फिर, मैंने बेजारी से कहा। उसका नाम नबील है। नताशा के जवाब पर मैं चौंक पड़ा। नबील उसका तायाजाद था। मैं उसे जानता था। वो लोग करीबी शहर में रहते थे। मेरा नाम भी नबील ही था, मगर मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा या खुशफहमी कह ले नहीं था कि उसने मेरा नाम लिया है। ओह अच्छा, तो पूरा मोहब्बत नबील के नाम निकला है। मेरे सवाल पर उसने फ़कत जी कहा था। अच्छा लड़का है, मैंने देखा है। मैंने यूं ही कह दिया, वरना शक्लो सूरत से वो आम सा ही था। आप किस नबील की बात कर रहे हैं? नताशा के सवालिया अल्फाज में शायद हैरत भी थी। आपका कज़न, मैंने हैरत और सवालिया अंदाज में कहा। मैं आपकी बात कर रही हूँ। नताशा के जवाब से मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। उसका जवाब मेरे लिए बिल्कुल गैर मतवक्को था। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये लड़की जो ढके छुपे से अंदाज में मुझे अक्सर बेशतर मैसेज भेजती थी, इनका मतलब मोहब्बत या मोहब्बत का इजहार था। मैं तो समझता था कि वो वक्त गुजारी के लिए मुझसे बात कर लेती है। मैंने भी सोचा कि चलो मेरा क्या जाता है, करती रहे मैसेज, मेरा भी अच्छा टाइम पास हो जाता है। मगर मोहब्बत, वो भी 3 साल से। बेशक नताशा ऐसी लड़की थी कि कोई भी उसकी तलब कर सकता था, मगर मैंने कभी उसके बारे में ऐसा नहीं सोचा था और ना ही मुझे उससे मोहब्बत थी। मैंने ये सब उससे साफ साफ कह दिया। मोहब्बत में ज़बरदस्ती नहीं होती। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, करती थी और करती रहूँगी। शायद कभी आपके दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत उतर जाए। इस उम्मीद पर मैं जहाँ तक हो सका उस वक्त का इंतज़ार करूँगी। उसके अल्फाज से मायूसी या गुस्सा जाहिर नहीं हो रहा था। एक उम्मीद थी, एक आस थी। मुझे अपने सच पे शर्मिंदगी सी महसूस हुई। क्या था अगर मैं कह देता कि हाँ, मुझे भी तुमसे मोहब्बत है, कम अज़ कम उसका दिल तो ना टूटता। मैंने अफसुर्दगी से सोचा, मगर झूठ बोलकर शायद मैं उसे ज़्यादा तकलीफ देता। नताशा की उम्मीद बहुत जल्द पूरी। 5 माह बाद एक रात मैंने उससे इजहार कर दिया। मुझे भी उससे मोहब्बत हो गई थी। वो साबित कदम रही, रोज़ मुझसे बात करती थी। कभी कभार मैं भाभी को छोड़ने या लेने जाता तो उससे सामना हो जाता था। कभी कभार वो मेरी 5 साल की भतीजी को मेरे सामने मुखातिब करके कह देती थी, फरहा आपके चाचू बहुत बुरे हैं, और जवाब में मेरी भतीजी फौरन कहती, नहीं आंटी, मेरे चाचू तो बहुत अच्छे हैं। दोनों के सवाल जवाब पर मुझे हंसी आ जाती। मैंने उससे इजहार किया तो उसका जवाब पढ़कर मुझे चुप लग गई थी। उसने लिखा था कि आपने बहुत देर कर दी है, मैं किसी और को पसंद करने लगी हूँ। मैं खामोश हो गया। गलती मेरी ही थी, मगर उसने तो कहा था कि मैं बस आपकी ही हूँ और जहाँ तक हो सका आपकी मोहब्बत का इंतज़ार करूँगी। मगर उसका इंतज़ार चंद माह में ही ख़त्म हो गया था। इसकी उम्मीद इतनी जल्दी नाउम्मीदी में बदल गई थी। आपका कसूर नहीं है नताशा, मैंने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। मैंने इंतहाई मायूसी से उसे लिखा। ये लिखते हुए मेरे लफ्ज़ों से ही नहीं बल्कि शक्ल से भी हसरत और यास टपक रही थी।
नताशा अगर इस वक्त मेरे सामने होती तो तरस खाकर ही सही, मगर वो मेरी मोहब्बत ज़रूर कबूल कर लेती। बस जी क्या करें, अब तो वक्त गुजर चुका है। नताशा के अल्फाज ने पछतावे की आग में तेल का काम किया था। बेसाख्ता मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपने सच की वजह से हीरे जैसी एक अनमोल लड़की को खो दिया था। चलो जहाँ रहो खुश रहो, मैंने दिल से उसे दुआ दी। उसका नाम नहीं पूछेंगे आप? नताशा के सवाल से मुझे लगा जैसे वो मुझे जलाना चाहती है। हाँ क्यों नहीं, बताओ कौन है वो खुशनसीब? मैंने जवाब में लिखा। वैसे भी फितरी तजस्सुस मजबूर कर रहा था कि मैं अपने रकीब का नाम तो जान लूं। आखिर कौन है वो जिसकी झोली में नताशा जैसा कीमती मोती गिरा है? पता है बहुत अच्छे हैं वो। नताशा ने नाम बताने की बजाय उसकी तारीफ की। जिसको आप चाहो वो बुरा भी हुआ तो अच्छा बन जाएगा। मैंने दिल से नताशा की तारीफ की और ये बात सच भी थी, क्योंकि नताशा जैसी लड़कियां वो पारिस पत्थर होती हैं जो किसी चीज़ को छू ले तो उसे सोना बना देता है। ओहो अच्छा जी, उसने अपनी तारीफ पर इतरा कर पूछा। जी बिल्कुल, ये सच है, आप पारिस हो। मैंने जवाब दिया। ये पारिस क्या होता? उसने हैरत से पूछा। मैंने उसे पारिस की तारीफ बताई तो जवाब में उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। आपकी तारीफ करने का अंदाज दूसरों से अलग है, नताशा ने कहा तो मैंने असराहे मजाक लिख दिया कि मेरा इंसल्ट करने का अंदाज भी दूसरों से अलग ही है। हा 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 का लंबा चौड़ा मैसेज आया। शायद वो मेरी इस बात पर खुलकर हंसी थी। वो भी मैं जानती हूँ, एक बार मैं भी आपसे इज्जत अफजाई करवा चुकी हूँ। नताशा ने कहा तो मुझे कई साल पहले वाली बात याद आ गई। वो वाक़या याद करके खुद ब खुद मेरे होंठों पे मुस्कुराहट आ गई। मुझे याद आया जब एक बार मैं भाभी को लेने उनके घर गया था तो नताशा और उसकी एक दोस्त ने फरमाइश कर दी कि हमने आज आपसे बर्गर खाने हैं। मैं चुप हो गया और शॉप से बर्गर लेकर आ गया। बर्गर खाते ही उन दोनों ने भाभी को घेर लिया कि हम शर्त जीत गई हैं, आप हमें शर्त का 100 रुपया दें। बात ये थी कि नताशा ने भाभी से शर्त लगाई थी कि हमारे कहने पर आपका देवर अपने पैसों का बिला चूं चरा बर्गर खिला दे तो 100 रुपया आप दोगी, और अगर उसने खुद या भाभी के कहने पर इनकार कर दिया तो नताशा हार जाएगी। भाभी काम में मसरूफ़ थी। उन्होंने मौके गनीमत जानकर चुपके से मासूम सी शक्ल बनाकर मुझसे फरमाइश कर दी और मैंने सोचा कि पहली बार उसने कोई बात कही है। वैसे भी उसकी दोस्त साथ थी। मैं इनकार करता तो नताशा को शर्मिंदगी होती और मुझे भी शर्म आती, सो चुपचाप बर्गर ले आया था। भाभी का कहना था कि तुम लोगों ने मेरे सामने उससे नहीं कहा था, इसलिए 100 रुपया बनता ही नहीं। मैंने भाभी को कहा कि आप शर्त हार गई हैं, मगर इसकी एक वजह है, और 100 रुपया निकाल कर नताशा के हाथ पे रख दिया। नताशा बहुत खुश हुई। अब इसकी वजह भी बता दो, भाभी ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा। वो जानती थी कि मैं ज़रूर ऐसी कोई बेवजह की वजह बयान करूँगा कि नताशा और उसकी दोस्त जीत को हार ही समझेंगी, और हुआ भी वही। भाभी बात ये है कि परसों मुझे किसी ने 300 रुपया दिया था कि ये किसी को सदका दे दूं, मगर मुझे उस दिन कोई ना मिला तो ये बात मेरे जहन से ही निकल गई। कुछ देर पहले नताशा ने बर्गर की फरमाइश की तो अचानक मेरे जहन में सदके के उन पैसों का ख्याल आया। मैंने सोचा किसी भूखे को खाना खिलाना भी सदका ही है, और इनसे बड़ा कोई भूखा मेरी नज़र में इस वक्त था नहीं। सो मैंने 200 के बर्गर उनको लाकर दे दिए और बाकी बच जाने वाला 100 शर्त जीत जाने की सूरत में नकद दे दिया। मेरी बात खत्म होते ही भाभी का कहकहा बुलंद हुआ। नताशा और उसकी दोस्त की सूरतें देखने के काबिल थी। नताशा ने फौरन 100 रुपया मेरी झोली में फेंका। दोनों ने शर्मिंदा सी नजरों से एक दूसरे को देखा और फिर मेरी तरफ। नताशा का सुर्ख होता चेहरा बता रहा था कि वो अभी रो पड़ी। उसकी दोस्त का भी कुछ ऐसा ही हाल था। इससे पहले कि वो दोनों वहाँ मातम शुरू करती, मैंने फौरन से पेशतर उनको सारी बात सच सच बता दी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ उन्हें तंग करने के लिए झूठ बोला था। पहले तो उन्हें यकीन ना आया, मगर भाभी ने उन्हें यकीन दिला ही दिया कि ये सब मनगढ़ंत कहानी थी। भाभी ने भी देख लिया था कि अगर लड़कियों को सच ना बताया गया तो वो रो रो कर सैलाब ले आएंगी। नताशा के मना करने के बावजूद मैंने 100 रुपया उसे थमा दिया और उसे हौसला दिया कि वो शर्त जीत चुकी है, ये 100 रुपया उसकी जीत का है।
सारी बातें सेकंड के 1000वें हिस्से में जहन में घूम चुकी थी। वैसे हुआ बुरा था उस दिन आपके साथ। मैंने यूं ही बात बढ़ाने के लिए नताशा को लिख दिया। जी, हुआ तो बुरा था पर अच्छा भी हुआ था। आपके हाथ लगे हुए पैसे मुझे मिले थे और पता है मैंने वो 100 रुपया अभी तक संभाल कर रखा हुआ है। उस दिन मैं बहुत खुश थी। नताशा के जवाब ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। इतनी सी उम्र में ऐसी मोहब्बत कौन करता है किसी से, और मैंने ऐसी लड़की को गंवा दिया। तासुफ से मेरा दिल भर आया। चलो खैर, आप नाम बताने लगी थी उसका। मैंने सवालिया अंदाज में पूछा। उसका नाम नबील है जनाब। उसका जवाब पढ़कर मैं फिर सवालों में उलझ गया। क्या उसे अपना कज़न नबील पसंद आ गया या मुझे कह रही है? शायद मुझे तंग करने के लिए वो सब कहा हो। नबील, मैं ना? मैंने उम्मीद भरे अंदाज में पूछा। नहीं मेरा नबील, ये अल्फाज नहीं गोया तलवार थी जो सीधी दिल पे चली थी। अच्छा वो नबील आपका कज़न? मैंने मरे मरे से अंदाज में लिखा। उसने मेरा नबील लिखा था। मुझे लगा उसने खाली जगह जानबूझकर छोड़ी है या फिर जल्दी में कज़न लिखना भूल गई, मगर उसके जवाब ने मुझ में नई रूह फूंक दी। उसने कहा, नहीं जनाब, वो नबील नहीं बल्कि ये नबील, मेरा नबील जिससे मैं बात कर रही हूँ और जो मेरे दिलो दिमाग में बसा हुआ है। सॉरी, मैं आपको तंग कर रही थी। उसका अगला मैसेज पढ़कर पता नहीं क्यों मुझे गुस्से की बजाय उस पे बेहद प्यार आया था। शुक्र है ये मजाक ही था, वरना मेरा मजाक बन जाता। मैंने खुशी से उसे लिखा और ये हकीकत भी थी, अगर उसे वाकई कोई और पसंद आ जाता तो मेरा शुमार जिंदों में रहता ना मुर्दों में। ऐन मुमकिन था पछतावे की आग मुझे राख कर देती। फिर इसके बाद हमारी हर रोज बात होने लगी। पहले मैं उनके घर कभी कभार ही जाता था, मगर अब अक्सर किसी न किसी बहाने से जाने लगा। कुछ वक्त गुजरा तो एक दिन मुझे अचानक ही ख्याल आया कि मुझे उनके घर ऐसे नहीं जाना चाहिए, पहले जैसे रूटीन रखनी चाहिए। ये ना हो नताशा के घर वाले, खास तौर पर उसके भाइयों को शक हो जाए तो बात बिगड़ सकती है और नताशा के लिए भी परेशानी हो सकती है। उस दिन के बाद दिल के मजबूर करने के बावजूद भी मैं बिला वजह वहाँ नहीं गया। नताशा ने ये बात महसूस कर ली थी। उसने मुझसे शिकवा किया कि अब आप बहुत कम हमारे घर आते हैं, इसकी क्या वजह है? मैंने उससे अपना खदशा बयान किया तो कहने लगी, कुछ नहीं होता, आप आ जाया करें। मेरा दिल करता है आपको देखने को। दिल तो मेरा भी करता था, मगर मैं अपने दिल पे जबर उसके लिए ही कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से वो किसी के शक की लपेट में आए। हमारी मोहब्बत की राजदान मेरी भाभी थी। भाभी के सिवा किसी को भी इस बात की खबर नहीं थी। फिर मेरे कहने पर भाभी ने रिश्ते की बात चलाई। दोनों घरानों में किसी को भी इस रिश्ते पर एतराज नहीं था, सिवाय इस बात के कि नताशा अभी पढ़ रही है। भाभी ने अपने घर वालों को इस बात पर राजी कर लिया कि नताशा और नबील की मंगनी कर दी जाए। नताशा की पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद शादी कर लेंगे और हमारी मंगनी हो गई। मंगनी का हम दोनों को एक नुकसान हुआ था, अब हम एक दूसरे को देख भी नहीं सकते थे क्योंकि हमारे यहाँ मंगेतर के घर नहीं जाते। मंगनी से पहले मैं भाभी के घर चला जाता था या नताशा कभी कभार हमारे घर आ जाती। मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार मैं भाभी और नताशा को उनके घर छोड़ने जा रहा था। बाइक पर नताशा मेरे पीछे बैठी थी, उसके पीछे भाभी। नताशा का दायां हाथ ऐन मेरे दिल के मुकाम पर था। उसने उंगली से पहले मेरे दिल की जगह पे दिल का निशान बनाया और फिर लव लिख दिया। मुझे इसकी इस अदा पर बहुत प्यार आया। वक्त गुजरता रहा। पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद नताशा ने बैंक में जॉब के लिए अप्लाई किया। दोनों तरफ शादी की तैयारियां होने लगी। नताशा के घर वाले चाहते थे कि नताशा के साथ उसके बड़े भाई की शादी भी कर दी जाए। उसके लिए लड़की देख ली गई थी, बल्कि लड़की उसने पहले ही, और वो लड़की नताशा के ताया की बेटी यानी उसके कज़न नबील की बहन थी। नताशा का भाई और उसकी कज़न दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। भाभी और उनकी अम्मी नताशा के भाई के लिए रिश्ते के लिए ताया के घर गईं। ताया को इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं था, मगर उनकी एक शर्त थी कि बदले में नताशा की शादी उनके बेटे नबील से कर दी जाए। मुझे बाद में पता चला कि ये शर्त नबील के कहने पर ही रखी गई थी, क्योंकि नताशा ने उसकी मोहब्बत ठुकराई थी और वो जान गया था कि नताशा अपने भाभी के देवर यानी मुझे पसंद करती है। अब उसे नताशा को हासिल करने का मौका मिल गया था।
और वो ये मौका किसी सूरत ज़ाया नहीं करना चाहता था। भाभी और उनकी वालिदा ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं नताशा की मंगनी हो चुकी है। ताया का कहना था कि मंगनी हुई है, शादी नहीं, इसीलिए अगर हमसे रिश्ता चाहिए तो बदले में रिश्ता देना होगा। भाभी और उनकी अम्मी अपने घर आ गईं। नताशा का भाई अपनी मोहब्बत नहीं छोड़ सकता था। उसने अपनी वालिदा को मजबूर किया कि वो नताशा की मंगनी तोड़कर ताया के घर शादी कर दे, और उसने धमकी दी कि अगर आप लोगों ने ऐसा ना किया तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। माँ अपने जवान बेटे की ख्वाहिश के आगे हार गई। भाभी की लाख कोशिशों के बावजूद भी हमें जवाब देकर नताशा की मंगनी उसके कज़न से कर दी गई। इधर भाभी की अना और मोहब्बत को ये गवारा नहीं था कि उनके भाई की मंगेतर की कहीं और शादी हो। उन्होंने बिना सोचे समझे भाभी को उनके घर ये कहकर भेज दिया कि अगर रिश्ता ले आओगी तो आ जाना, वरना मैं तलाक के कागजात भेज दूंगा। मैं उन दिनों घर नहीं था, दूसरे शहर गया हुआ था, मगर मुझे सारी बातों का इल्म नताशा के जरिए हो गया था। वो मुझे मैसेज या कॉल पे पल पल की खबर देती रहती थी और कहती थी, नबील प्लीज़ कुछ करो। मैं बिना देखे जान सकता था कि वो रोती रहती है। हालात इस नहज पर थे कि मैं बस उसे तसल्ली ही दे सकता था। घर वापस आया तो भाई और घर वाले शदीद गुस्से में थे, मगर मैंने उनसे कह दिया कि मैं अब नताशा से शादी नहीं करूंगा, चाहे वो लोग खुद रिश्ता लेकर आएं, क्योंकि मेरी अना ये गवारा नहीं करती कि मंगनी तोड़ने वालों से मैं कोई रिश्ता जोड़ूं। ये बात मैंने सिर्फ भाभी का घर बचाने के लिए कही थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेकसूर और इंतहाई अच्छी भाभी का घर मेरी वजह से टूट जाए। अगले दिन मैं भाभी को लेने उनके घर पहुंच गया। भाभी मुझे देखकर रो पड़ी। मैं जानता था वो अपने नहीं मेरे दुख पे रो रही हैं। उनकी वालिदा बेचारी शर्मिंदा शर्मिंदा सी थी। नताशा ने मुझे बामुश्किल सलाम किया। इसके बाद वो कमरे में चली गई। मैं उसकी आंखों में तैरती नमी देख चुका था। मैं जानता था अंदर कमरे में वो रो रही होगी। मैंने भाभी से कहा कि मैं नताशा से आखिरी बार बात करना चाहता हूँ, और अंदर कमरे में चला गया। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक नताशा घुटनों में सर दिए बिलक रही थी। आहट पाकर उसने सर उठाया और फिर दौड़कर मेरे गले लग गई। मैंने बामुश्किल उसे खुद से अलग किया और चुप कराने की कोशिश की। नबील मैं मर जाऊंगी, नताशा के लहजे से छलकते अज़म ने मुझे लर्जा दिया था। उस पागल सी लड़की का कोई भरोसा नहीं था। जज्बात में आकर ये खुद को नुकसान पहुंचा सकती थी। देखो नताशा, अगर तुम चाहती हो कि मैं जिंदा रहूं, तो कोई भी कदम सोच समझकर उठाना, और अगर तुम चाहती हो कि मैं भी मर जाऊं तो जो दिल में आए करना। मैंने जानबूझकर सपाट लहजे में कहा था ताकि वो डर जाए और कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। नताशा ने सर उठाकर भीगी आंखों से मुझे देखा। लोग जीने नहीं देते, आप मरने नहीं देते, मैं क्या करूं? उसने रूहान से लहजे में कहा। उसके अल्फाज में छुपी बेबसी ने मुझे तड़पा दिया। बेबस तो मैं भी था, मगर मैं किसी को दोष देता, क्या कहता? नताशा के माथे पर आखिरी बोसा देकर मैं भाभी को लेकर उनके घर से निकल आया। शादी से कुछ दिन पहले नताशा को बैंक में मुलाजमत मिल गई थी। कुछ दिन बाद उसकी शादी हो गई। एक बार एक बेटी और बहन ने अपने ख्वाहिशों को अपने भाई की ख्वाहिश पे कुर्बान कर दिया था। अपनी मोहब्बत का गला घोंटकर किसी और की मोहब्बत को नई जिंदगी बख्श दी थी। भाभी ने तो एक बार मुझे यहाँ तक भी कह दिया था कि तुम और नताशा चोरी छुपे शादी कर लो, बाद में सब संभाल लूंगी। मगर इस तरह उनके घर की बदनामी होती, और मैं ये हरगिज नहीं चाहता था कि भाभी और उनके घर वाले हमारी वजह से सर झुकाकर चले। मेरे पास सिवाय यादों के और कुछ नहीं बचा था। उसके साथ गुजरी इन सुहानी यादों का आबे हयात मैं घूंट घूंट अपने अंदर उतार कर खुद को जिंदा रखे हुए था। नताशा की शादी को 2 माह हो गए थे कि एक रोज़ मुझे किसी अनजान नंबर से मैसेज आया। मैसेज पढ़कर मेरा खून खोल उठा था। मैसेज में लिखा था, तुम्हारी मोहब्बत मेरे इस्तेमाल में है। लफ्ज़ मोहब्बत से शायद उसकी मुराद नताशा थी। मैं बिना पूछे जान गया था, नबील के सिवा और किसी का नहीं हो सकता। मैंने मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आई आखिर उसे ये मैसेज लिखने की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि मेरी आज तक कभी उससे बात भी नहीं हुई थी और वो बेवजह की दुश्मनी पाले हुए था। अब मैं ना चाहते हुए भी खामोश सा रहने लगा था। बोलने को दिल ही नहीं करता था। कोई कुछ कहता तो बस मुँह हाँ में जवाब दे देता। भाभी को भी ये बात पता चल गई थी कि मैंने घर में कहा था
कि अब अगर वो रिश्ता करना चाहें भी तो मेरी तरफ से इनकार है। भाभी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा। घर वाले कहते थे कि शादी कर लो, मगर मैंने सोच लिया था कि अब किसी और का नहीं होना। नताशा बैंक में जॉब करती थी। ये बात मुझे भाभी के जरिए पता चली थी। मुझे याद आया कि एक बार उसने मेरी किसी बात पर कहा था, नबील, मैं पढ़ लिख कर जब कहीं नौकरी करूंगी तो पहली सैलरी से आपके लिए एक गिफ्ट खरीदूंगी। और अब तो उसने कभी मैसेज करके भी नहीं पूछा था कि कैसे हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि नताशा इतनी जल्दी बदल गई है। मुझे लगता था वो मुझे भूल गई है। शायद उसने नसीब से समझौता कर लिया है। उसे चाहिए था कम से कम एक मैसेज करके हाल ही पूछ लेती। 3 माह मजीद गुजर गए थे। एक दिन भाभी के जरिए मुझे पता चला कि नताशा को उसके शौहर ने मारा है। ये सुनकर दिल में एक आग सी सुलग उठी थी। मैंने बाजार चुपचाप ये खबर सुनी और घर से निकल गया। 2 दिन बाद नताशा के शौहर को डाकुओं ने लूट लिया और उसे इतना मारा कि अस्पताल पहुंच गया। सुनने में आया था कि उसका एक बाजू भी तोड़ दिया है। दुनियादारी के नाते भाभी भी उसकी आदत को गई थी। वापस आकर भाभी ने बताया कि उसे बहुत बुरी तरह मारा गया है। मैं अच्छी तरह जानता था कि उसे कितनी बुरी तरह मारा गया है, क्योंकि मैं और मेरे 4 दोस्तों के सिवा कोई भी ये बात नहीं जानता था कि हमने उसे मारा था। जी हाँ, वो डाकू मैं और मेरे दोस्त ही थे। मुझे जब पता चला कि उसने नताशा पर हाथ उठाया है तो मैंने उससे बदला लेने का सोचा। मैंने 2 दिन उसका पीछा करके ये पता किया कि वो कहाँ और किस वक्त जाता है। इसके बाद एक जगह हमने उसको घेर लिया। उसका बाजू मैंने ही तोड़ा था ताकि वो आइंदा किसी की मोहब्बत को लावारिस ना समझे। नताशा के शौहर को कभी भी ये मालूम ना हो सका कि वो डाकू कौन थे। भाभी के मुंह से मैंने खुद ये सुना था कि अच्छा हुआ, उस कमीने के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। और ये सुनकर मुझे इत्मीनान हो गया कि मैंने गलत नहीं किया। नताशा के ससुरालियों के पास अपनी गाड़ी थी, मगर फिर भी वो नताशा को उसके मैके नहीं लाते थे। शादी के बाद वो सिर्फ एक बार मैके आई थी। नताशा की शादी के ठीक 7 माह बाद वो एक दिन नाराज होकर अपने मैके आ गई। नताशा ने कभी वापस ना जाने का ऐलान कर दिया। उसने जो कुछ अपने घर वालों को बताया, उसे सुनकर उसके घर वालों ने भी नताशा का साथ दिया। भाभी अपने मैके गई हुई थी। मैंने भाभी को फ़ोन किया तो पता चला नताशा भी आई हुई है। ये सुनकर मेरा दिल मचल गया, मगर सोच रहा था कैसे और क्यों जाऊं। ये मसला भाभी ने हल कर दिया। 4 दिन बाद उनका फ़ोन आया कि आकर मुझे ले जाओ। मैंने देर नहीं की, फ़ौरन बाइक लेकर पहुंच गया। घर में दाखिल होते ही मेरा सामना भाभी से हुआ। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने मेरे सर पे शफकत से हाथ फेरा और अंदर कमरे में ले गई। मेरे बैठते ही नताशा और उसकी अम्मी भी आ गईं। हम दोनों ने एक अरसे बाद एक दूसरे को देखा था। मेरा दिल कर रहा था उसे सीने से लगाकर इतना रोऊं कि सारे गम आंसू बनकर बह जाएं, मगर भाभी और उनकी अम्मी की मौजूदगी में ये सब सिर्फ सोचा जा सकता था। नताशा ने मुझे सलाम किया। मैंने जवाब देकर उसका हाल पूछा। उसने बस इतना ही कहा कि ठीक हूँ। 7 माह में वो बहुत मुरझा सी गई थी। मैंने चाय पी और कुछ देर बैठने के बाद भाभी से कहा कि हमें अब चलना चाहिए। भाभी तैयार हो गई। मुझे ये जानकर बेहद खुशी हुई कि नताशा भी हमारे साथ जाएगी। बाइक पे बैठे उसने फिर वही किया जो एक बार पहले वो कर चुकी थी। ऐन मेरे दिल के मुकाम पे उंगली से दिल बनाया और फिर लव लिख दिया। मुझे कुछ भी खास महसूस न हुआ। शायद इसकी वजह ये थी कि मैं जानता था कि अब वो किसी और की है और ये एक तल्ख हकीकत थी जिसे मैं कबूल कर चुका था। वो 4-5 दिन हमारे घर रही। इस दौरान बहुत सी बातें हुई, नई और पुरानी बहुत सी बातें। मैंने उसका दिल बहलाने के लिए कह दिया कि एक बात माननी पड़ेगी कि आपके नसीब में है नबील ही। मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मगर सिर्फ नाम की हद तक। वो नबील नहीं जो होना चाहिए था। बात ख़त्म करते करते वो रोने के करीब हो गई। मैंने फ़ौरन बात बदल दी। मेरा मकसद उसका दिल दुखाना नहीं था। उसने मुझे एक महंगा मोबाइल दिया। कहने लगी, मैंने ये आपके लिए अपनी पहली सैलरी से ख़रीदा था। मुझे यकीन हो गया वो कुछ भी नहीं भूली थी। मैं ही उसकी पहली नज़र की आखिरी मोहब्बत हूँ। नताशा की ज़ुबानी मुझे मालूम हुआ कि उसे मोबाइल रखने की इजाज़त नहीं दी गई थी। उसने कहा कि मैंने कई बार बैंक से कॉल करने की कोशिश की, मगर आपका नंबर हमेशा ऑफ होता था। इसकी बात सच थी। मैं ज़्यादातर नंबर ऑफ रखता था।
कहने लगी, शादी कर लो, दुनिया में मेरे लिए कोई दूसरी नताशा नहीं है। मेरे जवाब पर वो खामोश हो गई। वो समझ गई कि मैं उसके सिवा किसी और को कबूल नहीं कर सकता। आप भी कह रही थी कि आपने कहा था मैं अब नताशा से शादी कर ही नहीं सकता, चाहे वो लोग खुद रिश्ता लेकर आ जाएं। नताशा ने मुझसे पूछा था और मैंने इकरार किया कि हाँ, मैंने ऐसा कहा था, और साथ ही वजह भी बता दी कि अगर मैं ऐसा ना कहता तो भाभी को तलाक हो जाती। आप सच में बहुत अच्छे हैं नबील। नताशा ने मुझे मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए कहा, आपको वो सॉन्ग याद है जो हम दोनों का फेवरेट है? नताशा ने इश्तियाक से पूछा। जब तक रहे धरती गगन, होता रहे मिलन अपना, मेरी जान दुआ करना। मैंने उसे गाने के बोल सुनाए तो उसके चेहरे पर एक उदास सी मुस्कुराहट आ गई। काश मिलन हो जाता। नताशा ने आसमान की तरफ देखते हुए हसरत से कहा था, हमारा अल्लाह हमारे लिए वही करेगा जो हमारे हक में बेहतर होगा। मैंने कहा तो उसके मुंह से बेइख्तियार बेशक निकला था। नताशा वापस अपने घर चली गई थी। उसकी गैर मौजूदगी में उसका शौहर उसे लेने आया था, मगर उसे जब पता चला कि वो हमारे घर गई हुई है तो आग बगोला हो गया। नताशा की अम्मी और भाइयों ने साफ कह दिया था कि नताशा अब उसके साथ नहीं जाएगी, वो नताशा को तलाक दे दे। उसे डर था कि अगर वो नताशा को तलाक देगा तो बदले में उसकी बहन को भी तलाक हो जाएगी। शायद ऐसा हो भी जाता, मगर नताशा ने अपने भाई से कहा कि उसकी बीवी का सिवाय उसके और कोई कसूर नहीं है कि वो ताया की बेटी और नबील की बहन है। आप अपना घर बर्बाद ना करें। नताशा को तलाक हो गई, ये बात मुझे कुछ दिन बाद पता चली थी। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई थी। नबील ने वैसे भी उससे फ़कत अपनी अना की तस्कीन के लिए ही शादी की थी, जिसका इजहार उसने अपनी हरकतों से कर दिया था। नताशा ने मुझे बताया था कि उसने वाज़े तौर पर कहा था कि उसे उससे ज़रा सी भी मोहब्बत नहीं है, वो बस मुझे और नताशा को जलील करना चाहता था। ये सारी बातें नताशा ने अपनी अम्मी को बता दी थी। उसकी अम्मी ने उसे हरगिज़ ये मशवरा नहीं दिया कि वो जैसे भी हो गुजारा करे, बल्कि उन्होंने साफ कह दिया कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, वो तलाक लेकर कहीं और शादी कर ले। मुझे जैसे ही नताशा की तलाक का इल्म हुआ, मैंने भाभी से कह दिया कि अब तो आप अपने घर वालों को कह सकती हैं कि वो दूसरी बार हमें ना आजमाए। भाभी ने हैरत से मुझे देखा था। तुमने तो कहा था कि अब नताशा से शादी करोगे ही नहीं, चाहे वो लोग खुद रिश्ता लेकर आ जाएं। मैंने भाभी को बताया कि ऐसा क्यों कहा था, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो जानती थी कि अगर वाकई में ऐसा जाहिर ना करता मुझे अब नताशा में कोई दिलचस्पी नहीं रही, तो मेरे घर वाले और भाई कभी अपने मौक़िफ़ से पीछे ना हटते। भाभी ने इसी वक्त अपनी अम्मी को फ़ोन किया और उनको सारी बात बता दी। उनको भला क्या एतराज़ हो सकता था। उन्होंने कहा कि नताशा की इद्दत के दिन पूरे हो जाएं तो निकाह कर देंगे। ये बात मेरे घर वालों को पता चली तो उन्होंने ये कहकर साफ इनकार कर दिया कि अब हम किसी सूरत ये रिश्ता नहीं करेंगे। भाभी बेचारी खामोश हो गईं। अलबत्ता मैंने भाभी को यकीन दिलाया कि ये रिश्ता ज़रूर होगा। आप बस अपने घर वालों को ये बात मत बताइएगा। मैंने घर वालों को राज़ी करने के बहुत जतन किए, मगर वो टस से मस ना हुए। तंग आकर मैं घर छोड़कर दूसरे शहर चला गया। 2 माह तक मैंने घर वालों से कोई राब्ता नहीं किया, तो एक दिन उनका फ़ोन आ गया कि वापस आ जाओ, हमने नताशा से तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। मुझे और क्या चाहिए था। मैं फ़ौरन वापस आ गया। इद्दत के दिन पूरे होते ही हमारा निकाह कर दिया गया। नताशा ब्याह कर हमारे घर आ गई। हमारे ख्वाब अगरचे रोकर ही सही मगर पूरे हो गए थे। मैंने कुछ लोगों को ये कहते भी सुना था कि ये बेवकूफ़ है, इसे क्या ज़रूरत थी तलाक याफ्ता से शादी करने की, इसे वैसे भी लड़की मिल जाती। कुछ ने तो ये भी कहा था कि इसमें इज्जत नफ्स ही नहीं है। उन्होंने जब पहले इनकार कर दिया था तो अब ये कर देता, मगर वो बेवकूफ़ ये नहीं जानते थे कि तलाक नताशा को हुई थी, हमारी मोहब्बत को नहीं। मैंने तो मोहब्बत को तलाक नहीं दी थी ना। वैसे भी लोगों को कौन समझाता कि मोहब्बत में अना का कोई काम नहीं है, और जहाँ अना हो वहाँ मोहब्बत का कशकोल खाली ही रहता है। भला मोहब्बत भी कभी तलाक याफ्ता होती है। शादी की पहली रात में कमरे में दाखिल हुआ तो नताशा दुल्हन बनी बेड पर बैठी थी। मुझे कमरे में दाखिल होता देखकर वो अचानक बेड से उतरी और मेरे सीने से लगकर रो पड़ी। मैं हैरान परेशान सा उसे देखे जा रहा था। मैडम, अब आपको रोने की ज़रूरत नहीं। इस बार जो आपके पल्ले पड़ा है ये दूसरा नबील है। मेरी बात पर वो रोते रोते खिलखिलाकर हंसी थी। आप भी ना,
رونے بھی نہیں دیتے ٹھیک سے۔ نتاشا نے لاڈ سے کہا، مسئلہ تو یہی ہے سارا کہ ہمارے ہوتے آپ روئیں کیوں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ محبت کبھی بھی نہیں مر سکتی بشرطے کہ واقعی